سب کا خیر مقدم ہے۔ آج جو میں نے آپ کو شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ دعوت دی، جو بھی میرے بھائی صحافت سے جڑے ہیں، میں نے آج آپ کو یہاں پہ اس لیے دعوت دی۔ آپ کو بخوبی پتہ ہے کئی دنوں سے میں ایک پائیدل مہم میں جڑ چکا ہوں گاندربل کے عوام کے ساتھ، جو میرے سپورٹرز ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، سب کے ساتھ میں گاندربل کانسٹیچوئنسی کا دورہ کر رہا ہوں۔ گاندربل کانسٹیچوئنسی میں اپنے خیالاتوں کا اظہار کرتا ہوں، لوگوں کو ملتا ہوں۔ جو پیار لوگوں سے مجھے مل رہا ہے، جو سپورٹ مجھے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، اس کا میں والہانہ استقبال بھی کرتا ہوں اور بہت خوش قسمت ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین یہ لائیو براڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، گاندربل کی باشعور عوام، میں محض ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ آنے والے اسمبلی انتخابات میں سچائی کی آواز ان خاندانوں کی، ان سیاستدانوں کے خلاف اٹھا ہوں جو آج تک گاندربل کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے مصیبت بن کے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آج تک گاندربل کی آواز کو دبایا، جنہوں نے آج تک یہاں کے نوجوانوں کو دبایا۔ میں کھلی بات کروں گا عمر عبداللہ صاحب کی، ان کے فیملی کی، نیشنل کانفرنس کے پالیسیز کی، پی ڈی پی کی بات کروں گا۔ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا مرحوم مفتی محمد سعید نے، جس میں گاندربل کے عوام نے ان کو باضابطہ طور پہ ایک موقع دیا گاندربل سے پی ڈی پی کی آواز کوئی بنے، مرحوم قاضی محمد افضل صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے محنت کی، یہاں کے باشعور عوام نے محنت کی، رات دن ہم نے ایک اکٹھے کیے اور یہاں سے قاضی محمد افضل صاحب کو ہم نے کامیاب کیا۔ اس کے بعد بدقسمتی ہوئی، آج اس کا جو بیٹا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، پی ڈی پی نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ بہت ساری مثال ہے ایسی گاندربل میں جہاں پہ آواز دبائی گئی، اور اس ٹائم پی ڈی پی نے یہاں پہ انچارج رکھا نعیم اختر صاحب کو گاندربل میں، این سی نے یہاں پہ ہم نے لوگ جوڑے این سی کے ساتھ، نیشنل کانفرنس کے ساتھ، مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب کو یہاں پہ مینڈیٹ ملا، فاروق عبداللہ صاحب کو مینڈیٹ ملا، ان کے فرزند کو مینڈیٹ ملا، مگر جب بھی وہ حکومت میں آئے تب علی محمد ساگر صاحب نے باہری ڈسٹرکٹ سے لوگ یہاں پہ لائے اور ان کو ریکروٹ کیا گاندربل میں۔ یہاں پہ جو ادارے بنے، بدقسمتی کی بات ہے گاندربل کے نوجوان کو وہاں پہ کوئی سپیس نہیں ملی۔ نیشنل کانفرنس نے آج تک ایکسپلوائٹیشن کی، نیشنل کانفرنس نے، عمر عبداللہ صاحب نے ایکسپلوائٹ کیا یہاں کے نوجوان کو۔ پی ڈی پی نے ہیلنگ ٹچ کی بات کی جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، تب وہ ہیلنگ ٹچ کہاں تھا جب پی ڈی پی نے ہاتھ بی جے پی کے ساتھ ملایا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے آٹونامی کی بات کی اور 2 بار وزیر اعلیٰ بنے آٹونامی کے نام پہ، وہ آٹونامی آج تک نہیں ملی ہمیں، گاندربل کے لوگوں نے وہ آٹونامی نہیں دیکھی۔ میں یہاں پہ محض ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں یہاں ہمارے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے نالے سندھ میں رو رہے ہیں، مزدوری کے لیے رو رہے ہیں، گاندربل کی عوام، بے روزگاری سر کے اوپر سے، ہمارے حقوقوں کی پامالی ہو گئی، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ کون آواز اٹھائے گا گاندربل کی؟ کون آواز اٹھائے گا؟ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنا، آج بھی قطار لگی رہتی ہے بزرگوں کی، وہاں پہ کوئی سہولیت نہیں ہے۔ بیسک امیونٹیز جو ہوتی ہیں گاندربل کی، وہ ہمارے پاس مہیا نہیں ہے۔ آج بھی گاندربل کا نوجوان، آج بھی یہاں کی مائیں، یہاں کی بہنیں پانی کے لیے ترس رہی ہیں۔ 70 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، تواریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ گٹلی باغ بابا وائل ایک بہت بڑا ووٹ بیلٹ ہے، جہاں سے
मियां अल्ताफ साहब को 1947 से उनके खानदान को कामयाब करते आ रहे हैं। वहां पानी नहीं मिल रहा है उनको। हायन से एक पाइप लानी थी, वो जोड़नी थी गुटली बाग एरिया से, वहां पे एक टैंकी बनती और टैंकी से उनको पानी मिल जाता। मगर 70 साल से इनके खोखले दावे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैंडेट है, उनके फर्जंदों के पास मैंडेट है, पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपनी बेटी के लिए मैंडेट है, अपने मामा के लिए मैंडेट है, अपने रिश्तेदारों के लिए मैंडेट है। गांदरबल का 1.5 लाख वोटर जो है, 1,26,000, यहाँ के इनके जो 25 साल के वर्कर हैं, अफसोस है मुझे उनके लिए पीडीपी के पास मैंडेट नहीं है। अफसोस है मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके लिए मैंडेट नहीं है। आज आप देखते हैं बदकिस्मती, कंगन में पीडीपी के 2 मैंडेट है। कंगन का शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी को। क्या 1.5 लाख वोटर्स में, 1,26,000 वोटर्स में यहां पे कोई हक नहीं रखता है वो यहां के गरीब की आवाज बने? सुबह अकिस मलिस सहार, सुबह अकिस माजिद सहार पैदल मार्चस मज वुचान पत्मो कैंसो दो पे कुन जाय सड़क तामीर गुमुत, कुन जाय ड्रेनेजुक तामीर गुमुत। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला से, उनके खानदान से, कि आज तक मुझे आप बताओ यहां पे कौन सी तामीर तरक्की का काम हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में? आप लोगों को यहां पे एड्रेस करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दौरे मारते हैं, इनको बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक क्या दिया है गांव लोगों को, यहां के अवाम को? बेरोजगारी हटाई? क्या यहां पे कोई स्कूल तामीर हुआ जिसका हम मुस्तकबल का दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए? एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ जहां से हमारे बच्चे कल को आला तालीम हासिल कर सके? या आपने कोई यहां पे इदारा बनाया जो गरीब अवाम या यहां पे जो हमारे विलो वर्कर्स हैं, जो बास्केट बनाते हैं, जो कानिल काम करान, तीन खतर शुआ कह चीज ये तो मैसर कोरमुत? आपने 70 साल में कोई मंडी यहां पे तामीर की जहां पे वो अपनी खरीद और फरोख्त कर सकते थे? यहां पे अगर किया है किसी ने, आज तक गुलाम नबी आजाद साहब ने वो डिस्ट्रिक्ट दिया है। उमर साहब कह रहे थे कल तक कि मेरे लिए ये असेंबली नागवारा है, यह मदश मैंने खतर बह कर ये एलजीएस अंडर काम, ये नेर कह काम। उमर साहब आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सीधी बात है, आज आप देख रहे हो उमर साहब को कहीं पे जमीन नहीं मिल रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उमर साहब वाकई तौर लोकन हमदर्दी आसे, अगर वाकई तौर से बुनी आसे गांदरबल रूदमुत, अगर वाकई तौर तमिस हमदर्दी यस नौजवान से बेरोजगार कौमस यस ट्रिपर ड्राइवर से सोमू स्टैंड वलिस से तेल उमर साहबस ये जरूरत टूट पत्थर वाल नश कह। उमर साहबस पजे ने तेल ये पे वोथुन तो बडगमिस मज फॉर्म भरुन। उमर साहब आपका राबिता खत्म हो चुका है लोगों के साथ। आपने हाल ही में लोकसभा इंतखाबात हारा बारामुल्ला से और लोगों ने आपको, आपकी हुकूमत को, आपके खानदानी राज को नकार दिया है। और आज मैं एक नौजवान आम इंसान, आम फैमिली से वाबस्ता रखता हूं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैं यहां के हर एक इंसान से, बाशूर अवाम से ये दरख्वास्त करता हूं कि हमने सोचना है आगे किस ख्वाब का, हम आगे किस मजदूर के लिए, हम अपने बच्चों के लिए कौन सा ख्वाब बुन रहे हैं। अस्किम ख्वाबुश तबीर करुन, अस्किम गांदरबलुक वनकस ब्रोट कुन वुचुन यस अवामुक, यस नौजवान सुन तथ खतर कुछ खुलास करो कुछ वक्त फंड्स का। आप देखिए पहले दिन से ही इनका ये चीज रहा है। 1987 से 1997 मज कोर यमो ये फर्जी इलेक्शन यथ मज पे तैयार गई सन बुजुर्ग तम सात मेन स्ट्रीमस मज मरहूम सईद अली शाह गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब, शबीर शाह साहब, सईद सलाउद्दीन साहब, और उनको बंदूक उठाने के लिए मजबूर किया ये शेख अब्दुल्ला की फैमिली है।
इन्होंने तब एक यहाँ पे फर्जी इलेक्शन करवाया जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवान लाखों में आज कब्रों में है। आज देखिए आप हमारे साथ क्या नाइंसाफियां हो रही है। आज जो भी सामने इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, पीएचडी आ रहे हैं कुलगाम से, आप देखो, ये बात जमात इस्लामिया की नहीं कर रहा हूं मैं रशीद इंजीनियर साहब की बात नहीं कर रहा हूं। कुलगाम साउथ एरिया में आप देखो कितने पीएचडी स्कॉलर्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमें वालियाना इस्तकबाल करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या चाहते हैं? यहाँ पे गन उठाए नौजवान मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इनको इस्तकबाल करो। लोग आज भी ढूंढ रहे हैं और लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है मरहूम काजी मोहम्मद अफजल साहब और जो वालिद साहब थे इशफाक जब्बार साहब के। वो यहाँ के मुकामी नुमाइंदे थे, उन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया और सबसे बड़ी बात जो थी वो एक्सेस था। रात के 12 बजे भी मेरा नौजवान वहां पे जाके अर्जी दायर करता था। अगर यहाँ पे आज पीडीपी जिंदा है, ये काजी मोहम्मद अफजल साहब की देन है। ये उस शख्स, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, ये उसकी देन है। अगर आज भी कोई पीडीपी का नाम ले रहा है, अगर हम उनकी पॉलिसीज को देख के चलेंगे, पीडीपी की पॉलिसीज को देख के चलेंगे, जब हुकूमत में आई मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने अपने फजन को लाया, औलाद जो अमेरिका पर सुबह वजीर पीडीपी झंडे इतलागन पोलस पे तम साथ वाला मुफ्ती साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मगर तम साथ उन फर्जन अमेरिका पे सुबह के वजीर अमन क्या छुड़ाई पीडीपी नाव शे नियत का अगर काजी मोहम्मद अफजल शे, उन्होंने उनके बेटे के साथ धोखा किया। वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है सियासत में। ये तो तुम का, चाहे सो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे सो पीडीपी हो। आप देखो हमारे इस गांधरबल में मुझे उनके साथ हमदर्दी है, बहुत हमदर्दी है। वो मेरे भाई है, वो मेरे बुजुर्ग है। शेख गुलाम अहमद सोलवरी है या बाकी दीगर सारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका कैरियर तबाह किया। मैं चाहता हूं अगर मुकामी इंसान बनेगा, चाहे काजी मोहम्मद अफजल साहब थे, चाहे उनके जो इशफाक जब्बार साहब के वालिद साहब थे शेख जब्बार साहब, वो फायदा गांधरबल को था, चाहे कम था चाहे ज्यादा था, मगर गांधरबल के आवाम को फायदा था। आज टूरिस्ट स्पॉट बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। ये 5 साल में एक बार आते हैं। उमर साहब के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बना है, पीडीपी का ये टूरिस्ट स्पॉट बना है। 370 ये हम भी डिमांड करते हैं 35A, जिससे हमें यहाँ पे हुकूक है हमारे, जिससे हमारा तशक्कुस है। मैं भी उसके लिए लड़ता हूं, मैं भी चाहता हूं, मेरा दिल भी कहता है, मेरे सपोर्टर्स आजाद साहब का भी है। मगर एक चीज मुझे बताइए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के जो ये खोखले वादे हैं, इन्होंने पंजाब की तरह आंदोलन स्टार्ट नहीं किया जब ये जेल से रहा हो गए, जब ये नजरबंद थे। फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी तंजीम या पीडीपी की तंजीम, इनको चाहिए था फिर सड़कों पे क्यों नहीं बैठे? ये जेल जाने से डरते हैं शायद। क्या धोखा दे रहे हैं लोगों को? पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया, लाखों में जवान दिए वहां पे, मगर उन्होंने किसी चीज के लिए गवर्नमेंट को तैयार किया, मनवाया उनको। इनको भूख है। कल तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी हम किसी सीट पे नहीं लड़ेंगे, उमर साहब कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा। ये साबित हो रहा है क्या क्या माजरा चल रहा है उमर साहब का। आज 2-2 सीटों पे लड़ रहा है। आज 370 की ये बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज 370 की बात करेगी, उमर साहब 370 की बात करेगी, 35A की बात करेगी, जिन्होंने इसकी दजिया उतारी पिछले 70 साल में। आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं 100 साल लगेंगे हमें इसको लाने में। क्या एक और जनरेशन हमें इसके पीछे लगानी है? क्या और वो कब्रों को यहाँ पे खोलना चाहते हैं? क्या और वो यहाँ पे जमीन को खून की नदियों से बहाना चाहते हैं? जो महज अपोज टर तन पे सोनवार पे इलेक्शन लड़ित यूंद खानदान, बीरवा पे इलेक्शन लड़ित यूंद खानदान। बारामूला हो 2 लाखों वोटों से गांधरबलस मन अख टर्म ना 2 टर्म चलम जहस मज हूर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन। अमिस क्या दोरे जंग पे इलेक्शन लड़ने खत जो लुकन गुमराह करान। कुछ 370 डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तुमो चूर कर 370 तुमो ये तशक्कुस शिनाख्त खत्म कर। इसको किसने कमजोर किया 70 साल में? मुझे बताइए। देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को जमहूरियत शुहरत का हक थावान, वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, कोई भी हो। रहा सवाल वोटर्स का, अवाम जो है ये खुद मुख्तियार है, अवाम बादशाह है। अवाम चाहे किसी एक आजाद उम्मीदवार को भी खड़ी कर सकते हैं और किसी एक साम्राज्य को नीचे ला सकते हैं।
ये सब अवाम के हाथ में है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा, यहाँ पे लोग बाशूर है, गांदरबल की आवाम खबरदार है। हमने आज तक यहाँ पे खानदानी राज देखा, हमने देखा यहाँ पे जो लोग वोट मांगने आते हैं कुछ चंद लम्हों के लिए, वो सब माहौल गांदरबल की आवाम ने देखा। आज चाहे 15 उठे, यहाँ से 20 उठे, सबको हम वालियाना इस्तकबाल करते हैं, मगर सवाल यहाँ पे पैदा करता है कि अवाम को यहाँ पे सोचना है। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे मैंडेट मिला है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से, गुलाम नबी आजाद साहब से। 1970 पे मीनस बुलाकस मंज वलुक ताम कैसे इंसानस मैंडेट मिले 1947 से कोई किसी एक पार्टी ने हमारे शेरपथरी ब्लॉक में मैंडेट नहीं दिया है। वाहिद मैं हूं, मेरी जात है जिसको गुलाम नबी आजाद साहब ने मैंडेट लिया। आज भी मेरे ब्लॉक में तहसील नहीं है। मेरे अवाम को, मेरे गरीब लड़के को, नौजवान को तुलमुला जाना पड़ता है। 1947 से 20 और 22 हजार का वोट बैंक शेरपथरी, उनकी आवाज में इतनी बुलंदी नहीं है। शोर लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनकी आवाज, उनके कानों तक ये आवाज नहीं जा रही है 15,000 वोटर्स की, 20,000 वोटर्स की। कि इन्हें क्या चाहिए, जरूरियत क्या है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। अलायंस का कोई मतलब नहीं है अगर लोग साथ में नहीं है। लोग एक ताकत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखिए जिनके साथ इनकी अलायंस है, कांग्रेस एक साइड से कह रही है 370 उनके मंशूर में नहीं है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कह रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे। ये कौन से लाइक माइंडेड दो जमातें हैं। रही बात जमात इस्लामिया और इसकी इंजीनियर रशीद साहब की, इनकी भी कुछ अपनी आइडियोलॉजी होगी, वो खुदा जाने और वो ये जाने। लोगों को आगे तय करना है ये किसको मौका दे रहे हैं। कुछ गांदरबल के नौजवान तक हैं, यहाँ के बुजुर्ग तक हैं, यहाँ उस माँ के लिए है, यहाँ उस बहन के लिए है जिसके पास टैलेंट था मगर वो जाया हो गया। मुझे कोई कौमी लेवल की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे गांदरबल के मसाइलों को लेके चलना है। मुझे गांदरबल के जो यहाँ पे बुनियादी मसाइल है, IAY केसेस है, नाला सिंध है, टिप्पर ड्राइवर को सड़क पे आने नहीं देते हैं, बाजरी रेत का मसला है, बुनियादी सहूलियत जो हमारी है होनी चाहिए। पीने का पानी, मुझे आप बताइए, गुंड रोशन मेरे एरिया में एक इलाका पड़ता है, उधर से जाने में कंगन करीबन 40 किलोमीटर है, सोनवार 50 किलोमीटर है। मेरे गुंड रोशन का भाई कल बिजली का खंभा मांगने के लिए सोनवार जा सकता है। मेरी एक माँ, मेरी एक बहन जिनके यहाँ मैं मिलता हूँ, जिनके यहाँ घरों में बीमार पड़े हुए हैं, उनको ट्रांसप्लांट करने हैं, आधों का किडनी का मसला है, आधों का लिवर का मसला है, उनको देखना है जनाब। हमने कोई नेशनल पॉलिटिक्स का नैरेटिव यहाँ पे नहीं चलाना है। मैं एक लोकल नुमाइंदा हूँ, यहाँ का खिदमतगार बनना चाहता हूँ, एक यहाँ पे जेन्युइन आवाज बनना चाहता हूँ। आप देखिए हमारा गांदरबल बहुत खूबसूरत है, ये त्यूत खूबसूरत, ये वो एक साइड सोनमर्ग, बेक साइड वो मानसबल, ये तेन वो शालबुगस में शिकारगा। कौन इनकी बात करेगा? इससे हम रोजगार खड़ा कर सकते हैं गांदरबल में। मगर लोगों को चाहिए, गांदरबल के अवाम को चाहिए वो इस बात को समझे हमारे साथ क्या चालबाजी हो रही है, क्या धोखा हो रहा है। हमारे नौजवान को यहाँ पे कोई मौका नहीं मिल रहा है। बुशुस उमन ये तो हमसाई, बुशुस पहले ये बुशुस बड़े, मैंने बारिश देखी है, मैंने धूप देखी है, यहाँ पे मैंने गरीब को तड़पते हुए देखा है, मैंने गांदरबल के अवाम को रोते हुए देखा है। मैंने यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, बैकवर्ड रिजर्वेशन के खिलाफ मैं नहीं हूं, रिजर्वेशन वेलकम करता हूं मैं उस चीज की। रिजर्वेशन के पैरामीटर्स होते हैं कुछ, या तो एक रिमोट एरिया में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, कोई रिमोट एरिया अगर है उसको रिजर्वेशन मिली, मोस्ट वेलकम। या तो कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होगा उसमें रिजर्वेशन मिल रही है, मोस्ट वेलकम। आप मुझे बताइए, ओपन मेरिट पे आज लाठी बरस रहा है, ओपन मेरिट पे आज तलवार इन्होंने रखी है। आज भी आप देखिए जिनको ST में कैटेगरी में लाया है इन्होंने, कंगन की मैं बात करता हूं, उनके फर्जंदों को रेंज रोवर 70 लाख की गाड़ी चलाने के लिए है। क्या नाइंसाफी है ये। उस ST दायरे में उसको लाओ जो आज के प्रेजेंट वक्त में गवर्नमेंट को चाहिए इस पे काम करे। अभी एक सर्वे होना चाहिए कि अगर बंदे ने
جس کو ایس ٹی اسٹیٹس آپ نے دیا ہے ان کے فرزند امریکہ میں پڑھتے ہیں، لندن میں پڑھتے ہیں، ہٹا دو ان کو ایس ٹی کا ریزرویشن. وہ ایک اس ایس ٹی جوان کے لیے موت بن کے کھڑا ہے جو وہاں پہ رہ رہا ہے، جو وہاں کے ظلم سہ رہا ہے، جو اس علاقے میں پہاڑ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، محنت سے پڑھا رہا ہے، اور وہ اس کے سامنے مد مقابل میں این سی نیشنل کانفرنس آج کسی ایک کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں جس کے پاس 70 لاکھ کی گاڑی ہے، جو امریکہ میں ہوتے ہیں، جو لندن میں ہوتے ہیں. کون سا انصاف ہے یہ ایس ٹی کیٹیگری کے ساتھ؟ یہ نا انصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ایک اوپن میرٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ یہ نا انصافی ہو رہی ہے. ان علاقوں کو میں نہیں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اگر کسی کو بیک ورڈ ملا ہے، مگر ایک اوپن میرٹ کے لیے قتل مت کرو. جو اوپن میرٹ ڈیزرو کرتا ہے، جو میرٹ بیسڈ ہے ان کو دے دو، اکنامک ریکنسٹرکشن کو دے دو، ریموٹ ایریاز میں جو ریموٹ ایریا ہے ان کو دے دو، لاٹھی مت برساؤ. تو ان چیزوں کے لیے میں گاندربل کے عوام کو سب کو تہ دل سے گزارش کرتا ہوں. یت کن لوکن یت کس عوامس چھس بہ گزارش کران، باشور عوامس، تہ صحافت سے تھی چھو جڑت، تھی واتنٲیِو یہ عوامس نش کت. اس یتن موقع اخ ونکس ملان، اس کرون اخ یتک مقامی انسان کھڑا یمس نش صبح 24 گھنٹہ ایکسس روز، یمس اس پن دین مانگ ہیکو بروٹ کن دت. ات چیزس کُنتھ یہ جو نہیں کہ یم چھو ونان ہو کت زین یہ کت. انہوں نے نارتھ کشمیر میں بھی یہی بولا تھا جب انجینئر رشید کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، ہو زین یہ زین یہ زین یہ زین. ہمارا ووٹ کہاں پہ ابھی ثابت ہو رہا ہے مجھے بتائیے؟ پچھلے 50 سال سے جو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں سہ کتن تیل ثابت گژھان؟ یہ زین کہین، امس کیا ترٛٲیِو ووٹ؟ تیل چھا عمر صٲبس تراون دجہِ منٛز اسہِ ووٹ؟ موقع دو نٔیِس أکِس انسانس دیو موقع، دِتکِس أکِس موقع دیو، مقٲمی انسانس دیو موقع. تبدیلی ہٕنٛز چھُ ضروٗرت یِتھ پٲٹھۍ نارتھ کشمیرس منٛز تبدیلی آئی. میں چاہتا ہوں میری عوام، میرے بھائی، میرے نوجوان میرے ساتھ رہیں گے، میری سپورٹ کریں گے اس مہم میں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم گاندربل کو خوشگوار دیکھیں.